Hello dear students, welcome back. I am Shweta and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, Enterprise Resource Planning, that is ERP. This is our last chapter and by completing this chapter we will finish our portion as well. Now, this chapter name is Enterprise Resource Planning. So, it has how many words? Three words. Enterprise, resource and planning. These are the three different words and they have their own meaning. What is that? Enterprise. Enterprise means what? Any large organization. Enterprise means what? Any large organization or we can say any large company. बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं या जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज. देन resource. What is resource? Resource can be anything. It can be any raw material. It can be any services, whatever the organization is of. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ मटेरियल बना रहा है तो उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल रिसोर्स. तो जो मटेरियल बनाता है दैट इज द रिसोर्स. If it is an institute, if it is a big institute, then what we can say, what they are doing, they are providing what services of education. वो education service provide करते हैं, so that is a that organization resource will be what? Education. Okay. Then what is planning? Planning means what? How to plan all these things accordingly and systematically. That is called as planning. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हर एक प्लानिंग बराबर से होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या डेटा होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट को क्या काम देना है. दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. सो ऑल दिस थिंग्स is done by the big organizations. Okay, so how that is done by the big organization, that we are going to study in this chapter. So the chapter name is what? Enterprise Resource Planning. So how the big organizations plan the resources, that we are going to study in this chapter. So let's begin. Now, in this chapter, we are going to learn what is an enterprise, then what is resource, what is planning, and lastly, we are going to see the concept of enterprise resource planning. So, let us see one by one. Now, before starting what is enterprise, what is resource and what is planning, let us go through the introduction. What is why there is a need of ERP, that we are going to see first. A large enterprise may generate huge amount of data such as financial data, customer details, purchase details, employee data, etc. Now see, large enterprise means big organizations or big companies. Now, if the company is big, the data will be large, huge amount of data, means they will be having a lot of data to save. Okay, such as we can say they might be having the financial data. What is financial data? All of you know, profit, loss, whatever related to the salary also. So all the financial, whatever the things are related about the money, that will be in the financial data. Then customer details, means suppose if the organization is a product selling company, अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर का फुल डिटेल रखेगा. ओके, सो इवन इफ द बैंक इज देयर, सो बैंक इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट बट बैंक सर्विसेज, देयर आल्सो दे विल बी हैविंग द कस्टमर डिटेल्स, राइट? So big these banks are also the big organizations, so they are also having all the customer details. Okay, so that data. Then purchase details, if the company is of if the company is purchasing anything for themselves, even if the bank is purchasing any things for themselves like computers, papers and whatever, so every detail whatever they have purchased, that details. Then employee data, the person who are working in that organization, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनका डेटा. देन सेल का डेटा, एक्सेट्रा. देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा which this company have to keep. Okay, ये पूरा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये जो सारा डेटा है, फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर का डेटा,
employees data, purchase data, sales data, etc. All this data, this large enterprises, this large organization has to keep the record of all these things. ओके सब डेटा उनका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट. देन only the organization that makes the best possible use of this information can succeed. यानी ये जो पूरी डिटेल्स है, ये जो पूरे डेटा है कस्टमर का, फाइनेंशियल का, एम्प्लॉयज का, जो ये सब डेटा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको अच्छे से यूज करेगा, ये इंफॉर्मेशन का अच्छे से यूज करेगा, वही आगे जाके सक्सीड होगा, उनको ही सक्सेस मिलेगा. ओके अगर सपोज आपके पास में रॉन्ग डेटा है या फिर आपके पास डेटा ही नहीं है, देन व्हाट विल हैपन दैट सपोज इफ एनीबडी इज कमिंग इन योर बैंक एंड बैंक में अगर उस कस्टमर का ऑलरेडी अकाउंट था लेकिन आपने बराबर मेंटेन नहीं किया, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा? नो, right? Means if you are not maintaining the data, then your organization cannot be successful in future. Okay, then if any company is there which is selling the product, if they are not keeping the record of the customer, that what the customer prefer more, कस्टमर को सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डिटेल के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो फिर उन लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू है. ओके सो दे हैव टू keep record of all these things, from that only they can succeed in future. In this age of information explosion, it is very difficult to manage just this huge information by people alone. तो पहले कैसे होता था कि पहले सारे रिकॉर्ड, सारे डिटेल्स कंपनी क्या करती थी, पूरे पेपर में पेपर रहते थे, सब कुछ डिटेल्स उनको पेपर में लिख के रखना पड़ता था, बुक मेंटेन करते थे, बुक में सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. अभी ऐसा होता है क्या, इतना डेटा, अभी इतना ह्यूज डेटा हो गया है कि सब लोग संभाल के नहीं रख सकते. मीन्स हर एक डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन लोग अपना बुक मेंटेन करते थे एंड एवरी डिटेल वाज इन द रिटर्न वे. ओके मीन्स सब इंफॉर्मेशन कौन करता था, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करते थे, पीपल अलोन यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स. हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, कैसे लिख के रखने का क्या है, वो सब उन लोग अपने बुक में लिख के रखते थे. ओके सो पीपल यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स, दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पीपल को संभाल के रखना पड़ता था. लेकिन अभी वैसा है क्या? नो, नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. Information technology and its related technologies can be used for planning and organizing resources and information of an enterprise. तो पहले तो लोग करते थे, लेकिन अभी इतना फास्ट हो गया है कि इतना डेटा संभाल के रखना इजी नहीं है. ओके सो इसके लिए अब किसका यूज किया जाता है? नाउ वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स यू नो IT, सब बातें कंप्यूटर पे हो गए. ओके एवरी वर्क इज डन इन द कंप्यूटर. सो फिर उसके ऊपर और भी जो उसके रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज रहेंगे उसका यूज करके लोग क्या करते हैं, दे यूज फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज. मीन्स कैसे प्लान किया जाए, कैसे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाए, एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज मीन्स कंपनी का इंफॉर्मेशन. तो ये सब बातें कैसे करना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग आजकल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आजकल करते हैं. Hence, most of the organizations are moving to enterprise resource planning, that is ERP. Packages has a solution to their information management problem. So what now the organizations are doing? Most of the organizations, now you can say almost all the organizations, सभी के सभी, बड़े रहे या छोटे रहे, पहले तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस करते थे लेकिन आजकल तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी they are also moving towards what? Towards ERP, that is enterprise resource planning. Okay, packages has a solution to them, means they are also taking this enterprise resource planning packages for their information management problem. Now actually this enterprise resource planning means what? ERP planning means there are some softwares like you can say SAP is there, Oracle is there. All this what they do, they are the software providers. They give this software to this companies, they provide the software to the companies जिनको मिस ERP चाहिए. जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, ओरेकल का ERP लेंगे या फिर SAP का लेंगे जो डेटा कलेक्ट करके रखता है. ओके फिर उन लोग उसका डेटा वो ऑर्गेनाइजेशन से हायर करेंगे. ओके मीन्स सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो पैकेजेस लेते हैं, फिर उसको चलाने के लिए भी उन लोग को
एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। ओके, सो ये रेडीमेड मॉड्यूल्स उन लोग किससे लेते हैं, ईआरपी मॉड्यूल्स उन लोग के पास रहते हैं। फाइनेंस का मॉड्यूल बना के रहेगा, जो सॉफ्टवेयर कंपनी से ये ओरेकल का संभालेगी, सैप संभालती है, उन लोग क्या करते हैं कि अपने पास अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रखते हैं। फाइनेंस का मॉड्यूल means then HR module, if any company wants finance module, they will provide finance module. If they want HR module, they will provide HR module. Sales module, sales module. Purchase module, purchase module. Likewise, depending upon the requirement of the organization, they are making or they are developing that modules, and then they are providing that modules to the organizations. वो बना के उनको provide करेंगे। ओके, सो और फिर उसमें वो सारा जो डेटाबेस है वो कंट्रोल करने का काम इनका रहेगा, या सैप या फिर ओरेकल जो है वो पूरे डेटा को कंट्रोल करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी नीडेड ईआरपी। ईआरपी का जरूरत क्यों पड़ा समझा, व्हाट व्हाई वी आर नीडिंग। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है आजकल, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास बहुत सा डेटा रहता है, जैसे कि फाइनेंशियल डेटा हो, कस्टमर का डेटा, परचेज का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा। ये जो सारे डेटा है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कि वो मीन्स अकेला इंसान नहीं संभाल सकता। ओके, मीन्स ओनली मैन और ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हैंडल ऑल दिस इंफॉर्मेशन। So they can miss, that information can be get lost. Okay, वो information steal भी हो सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है। वो information क्या हो सकता है, गुम मीन्स इट कैन बी लॉस्ट ऑल्सो, मीन्स कोई चोरी करके लेके जाएगा, या फिर बाय मिस्टेकली आपके हाथ से गिर गया, या कुछ खराब हो गया, या फिर कुछ भी, मीन्स पेपर्स इट कैन नॉट बी फॉर एवर, राइट। तो फिर वो खराब भी हो सकता है। तो उस तरह से ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसके जो टेक्नोलॉजीज रहते हैं उसका यूज करके डेटा क्या किया जाता है, डेटा मैनेज किया जाता है। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है आजकल, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, all organizations, they are moving towards the ERP, and this ERP packages they are managing, or they are doing they are solving the problems of big organizations. Okay, so the packages can be of this ERP packages, it might be of SAP or Oracle databases. They are handling how to control the database. Okay, now that's why the need of enterprise resource planning has been came into existence. Now let us see one by one what is enterprise, what is resource, what is planning. Okay. Now the first thing which comes into picture is enterprise. Now what is an enterprise? An enterprise is a group of people and other resources working together for a common goal. What is enterprise? It is a group of people. I told you what is enterprise. Enterprise क्या होता है? एक big organization होता है, या फिर any institute होता है, कोई भी, कौन सा भी बड़ा. So it is a group of people. वहाँ पे सारे लोग जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, that is a group of people and other resources working together. And other resources means that can be any material, raw material, or any teaching related things. If it is a institute, then that institute, whatever they are teaching, that resources, that tools, they are working together for a common goal. And what is their main aim? सबका aim एक ही होता है. Okay, so therefore the common goal, all the things are working together, that is called as enterprise. So enterprise meaning, you know that it is an organization. That organization can be any organization. ओके, वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, देन कोई कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज, या फिर anything, any nowadays each and everything that they are the enterprises. Every big industry is an enterprise. So an enterprise is a group of people and other resources working together for a common goal. सब लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं, उसे बोलते हैं enterprise. Then an enterprise acts as a single entity, and an organization is divided into different units based on the operations performed in it. An enterprise acts as a single entity. So single entity means what?
सिंगल एंटिटी, एंटिटी मीन्स सेपरेट, ओके, सेपरेट एक सिंगल खुद ही रहेगा, and they are that act as an organization is divided into different units based on the operations performed in it. It has act as a single entity and an organization is divided into different units based on the operations performed in. What is the meaning of this? This says that एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट रहेगा ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे, ओके, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग रहेंगे. फॉर एग्जांपल वी कैन से देयर कैन बी फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे फाइनेंस के लोग काम करने वाले रहेंगे, सब वो डिपार्टमेंट के अंदर सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने वाले लोग. देन देयर विल बी एचआर डिपार्टमेंट, फिर एचआर डिपार्टमेंट में भी अलग अलग लोग काम करने वाले रहेंगे. देन देयर विल बी परचेज डिपार्टमेंट, जहाँ पे सब परचेज डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड काम करेंगे. Production department will be there. Then there can be we can say sales department, okay. Likewise you will see there are many departments. So ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया रहता है, ओके, और सबके अलग अलग अपने काम होते हैं. एचआर डिपार्टमेंट का काम पूरे एचआर के लोग ही देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम सब फाइनेंस का ही देखेंगे. ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे एक तो वो एक ही फर्म के अंदर काम कर रहे होंगे या फिर उनका डिवीजन होगा कि ये एरिया में सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरे एरिया में एचआर के लोग काम कर रहे हैं, तीसरे एरिया में प्रोडक्शन के लोग काम कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है या फिर सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं. सो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एचआर डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पहचानता होगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं पहचानता होगा. ऐसा sometimes it might happen like this also, because if the organization is very huge then people might not know who is this person from which department. Then sometimes they talk and but all the time they will be having means एक building के अंदर सारे HR department वाले हैं, दूसरे building के अंदर सारे production वाले हैं. So like it might happen like that, okay. So this is called as a this organization will be divided into different units, okay, based on the operations performed in it. Means जो operations उन लोग perform करे उनके basis पे उन लोग का different units रहेगा. Then an enterprise may consist of different sections such as manufacturing or production, planning, sales, purchase, finance, distribution, etc. Now only I told you. So एक enterprise के अंदर बहुत सारे sections हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो एक डिपार्टमेंट होगा. प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स का होगा, एक परचेज, एक फाइनेंस, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एक एचआर. ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एंटरप्राइज के अंदर. Each department will have their own duties and responsibilities and they are working to achieve the objective which is set for the enterprise. तो हर एक डिपार्टमेंट में उनकी अपनी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करेगा, वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखेगा. फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंस का ही काम करेगा, वो प्रोडक्शन या सेल्स, परचेज, एचआर इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ अपना काम पता है. हर एक डिपार्टमेंट में अपने काम, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे नो व्हाट टू डू एंड दे नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क. सो उनको क्या काम करना है वो उनको पहले ही बताया होता है, तो उन लोग का सिर्फ उतना ही काम रहता है, उनका उतना ही ऑब्जेक्टिव होता है, ओके. सो दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, दे डू नॉट इंटरफेयर और दे डू नॉट इवन नो ऑल्सो व्हाट इज गोइंग इन द अदर डिपार्टमेंट. एक दूसरे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के डिपार्टमेंट का काम पता नहीं होता है, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट का ही काम बराबर पता होता है. So that is an enterprise. हर एक बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही होता है, सबके डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं और सब लोग अपना अपना काम ही करते हैं, कोई जाके दूसरे के काम नहीं करता है, ओके. सो that is what about an enterprise, okay. So let's move further and let us see now what is resource. Now what is a resource? There are different types of resources in an enterprise like main, material, money and machine. So I told you what is resource. Resource can be anything. It can be any raw material, it can be main, it can be money and machine. So these are the resources, okay. So like in bank, what are the details, what is the resource? Resource is what? Main means person. Main means not in bank what happens if detail is about the customers,
Okay, every detail is about the customers, that is a resource. Then material means what? Raw material means if any production company is there, if any selling company is there, if they are selling any products, then material will be there, raw material will be there. Money related things, machine related things, everything, this is all what? These are all the resources. Resources means what? We can say like we can touch that thing, जिसको हम लोग देख सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं, उसे हम लोग रिसोर्स बोलेंगे. ओके, सो जैसे कि पैसा है, इसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं. रॉ मटेरियल जो रहेगा उसको हम लोग देख सकते हैं, हम लोग उसको हम लोग टच कर सकते हैं. मशीन है, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं. दैट इज व्हाट दिस एवरीथिंग इज व्हाट? Resource. Then information system can be designed for various departments of an enterprise so that accurate and timely data can be provided to the concerned persons. So information system can be designed. So हम लोग information system में इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो various departments है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको so that they can have the accurate and timely data. जो भी डेटा उनको मिल रहा है वो accurate होना चाहिए और डेली का उन लोग को डेटा मिलना चाहिए. जो भी डेटा रहेगा वो डेली बेसिस पे जो भी डेटा मिलता है वो उनके पास रहना ही चाहिए. ओके, जो पर्सन जिसके लिए काम करता है, जिसका फाइनेंस का डेटा है, तो वो किसके डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना. फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डेटा एचआर के डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए. सो जो जिसका डेटा है वो ही कंसर्न पर्सन के पास ही उसी डिपार्टमेंट में वो डेटा जाना चाहिए. So this is about the resource. Okay, so there are different resources, like we can say main, material, money and machine. Now let us see what is planning. Now what is planning? Planning helps managers to improve future performance by establishing objectives and selecting a course of action for the benefit of the organization. So planning means what? Everyone knows. अगर हम लोग suppose for example हम लोग को अगर पिकनिक पे जाना है, तो हम लोग पूरा प्लानिंग करते हैं कि कौन सा स्पॉट, कितना पैसा लगेगा, किससे जाना है, कितने लोग आने वाले हैं, वहां पे जा कितने दिन रहना है, क्या करना है वहां पे जाके, सब मीन्स एवरीथिंग वी प्लान. ओके, हम लोग डायरेक्टली उठ के लेके नहीं जाते बैग कि चलो चले पिकनिक पे, नॉट डिसाइडिंग स्पॉट, नथिंग, ऐसा कभी नहीं होता है. हम लोग पिकनिक पे जाना है तो पहले स्पॉट डिसाइड करते हैं, फिर किससे जाना है वो भी डिसाइड करते हैं, बाय 2 व्हीलर, बाय 4 व्हीलर, बाय ट्रेन, एवरीथिंग भी डिसाइड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग. सो प्लानिंग हर एक बात के लिए रहता है. तो जैसे बिग कंपनी से उनमें अगर कुछ काम, उनमें वहां पे अगर कुछ काम हो रहा है तो वो भी बराबर से प्लान करेंगे, जिससे कि उनके कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, उनके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एवरीथिंग. तो इस तरह से उन लोग प्लान करेंगे कि किस तरह से अपना कंपनी सबसे ज्यादा फायदे में हो, सबसे ज्यादा बेनिफिट अपनी कंपनी को मिल सके, इस तरह से उन लोग प्लान करें. ओके, सो प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. मीन्स मैनेजर्स क्या करते हैं, इस तरह से प्लान करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए. बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसका कुछ गोल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए. उठाया और कुछ भी प्लान किया ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, उसके लिए कौन सा टाइप का एक्शन करना है, क्या करना चाहिए वो देखना चाहिए. और द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो. So that is called as planning. So everyone know what is planning. So that is planning. Planning helps managers to improve future performance by establishing objectives and selecting course of action for the benefit of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में जो भी चीज हो सकती है उसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं कि किसने क्या काम करना चाहिए, किसने क्या काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. नाउ लेट अस सी Now we will see what is the concept of enterprise resource planning. What is the concept? So ये enterprise resource planning किस तरह से काम करता है? What is the concept of this? Why we are using this enterprise resource planning? That we will see now. Now, in some enterprises, different department functions independently. तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन लोग अलग अपना अपना काम अलग से करते हैं, यानी सब लोग मिलके काम करते नहीं है. उनके डिपार्टमेंट के सारे लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग सब मिलके काम करेंगे. इस तरह से सब डिपार्टमेंट में अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली होता है.
So the information that is produced by each department may be available on to the top management of the department and it is not available to the other departments. तो क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और इन सब डिपार्टमेंट्स का एक बड़ा हेड होगा उसके ऊपर, राइट? सब डिपार्टमेंट्स मिलके एक बड़ा हेड होगा। तो जो इंफॉर्मेशन होती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, वो इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी? जो सबसे टॉप लेवल पे रहेगा उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी हर एक डिपार्टमेंट की। एचआर डिपार्टमेंट का जो एचआर डिपार्टमेंट का मेन पर्सन होगा उसके पास सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पर्सन होगा उसके पास सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा, जो मेन पर्सन है। ओके, लेकिन इन सब डिपार्टमेंट का मेन इंफॉर्मेशन, जो सब डिपार्टमेंट्स का इंफॉर्मेशन एक रहेगा, वो किसके पास रहेगा? जो सबसे हायर लेवल पे बैठा रहेगा। इन सबसे ऊपर जो बैठा रहेगा उसके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारे डिपार्टमेंट का डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा only on the top management department and it is not available to the other departments। और ये किसी means other departments को नहीं रहेगा। जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास में सिर्फ फाइनेंशियल का डेटा रहेगा, तो उनके पास में उनको इसका एचआर का डिपार्टमेंट का डेटा पता होगा क्या? नहीं। उनको प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का डेटा पता होगा क्या? नहीं। ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपना खुद का डेटा रहता है, उनको किसी और डिपार्टमेंट का डेटा पता रहेगा क्या? नहीं। So see, your production planning, finance, marketing, HR, production, sales and distribution, all these are what? These are the different types of departments। ये सारे departments दिए हैं। इसके पास production planning में सिर्फ production planning का डेटा है, फाइनेंस के पास सिर्फ फाइनेंस वाले का डेटा, मार्केटिंग वाले के पास सिर्फ मार्केटिंग का डेटा, एचआर के पास सिर्फ एचआर का डेटा, प्रोडक्शन के पास सिर्फ प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास सिर्फ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही डेटा अवेलेबल होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस फिगर देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पे एक दूसरे का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट संभालने में बिजी है, किसी को किसी एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है। ओके, सो तो क्या हो गया? नाउ व्हाट हैपन? ERP system often combines. Now what is the work of this ERP? अभी ERP का काम क्या है? यहाँ पे आता है ERP का काम। सब लोग डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा दिख रहे हैं, उनके पास में सिर्फ उनके ही डिपार्टमेंट का डेटा है, उनके पास सबका डेटा नहीं है। अगर सपोज कहीं एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसको अगर सपोज किसी कस्टमर का डेटा चाहिए तो फिर वो क्या करेगा? कस्टमर रिलेशनशिप डेटा में जिसके पास में कस्टमर का डेटा है उसको उसके पास जाके ढूंढना पड़ेगा या उसको मांगना बस उसको उससे लेना पड़ेगा। ओके, तो इससे अच्छा अगर ERP रहेगा, इससे अच्छा अगर ERP सिस्टम है, what is this ERP system does? It often combines accounts, payables, stock control systems, order monitoring systems and customer databases into one system। ERP क्या करता है कि ये जो सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा जो अलग अलग इसमें था, अलग अलग डिपार्टमेंट है में होता है, वो सब एक ही डेटाबेस के अंदर रखेगा। ओके, इनटू वन सिस्टम, एक ही सिस्टम के अंदर ये सारे लोगों का डेटाबेस एक साथ करके रखेगा। That is the work of ERP. What does ERP do? It is combining all the information, all the database, all the data from all the departments and it keeps it in one system. उसे बोलते हैं database, central database। वो सारा डेटा अपने पास एक central database के अंदर रखेगा। Information about the entire enterprise can be stored in a centralized database and it is made available to all the departments। तो क्या हो जाएगा? Information about the entire enterprise, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है हर एक डिपार्टमेंट से, वो क्या करेंगे? ERP क्या करता है? इस सब को एक ही डेटाबेस में, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं उसे, उसमें रखेगा। सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में रखेगा। इससे क्या हो जाएगा? इट इज मेड अवेलेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सबको ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर एचआर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा देखना है या फाइनेंस डिपार्टमेंट को एचआर का देखना है तो वो डेटाबेस से चेक कर सकता है। इफ that department is facing any problem and if that department wants to see the information about the other department, then that department can see that information using the centralized database। ओके, अभी तक सब डिपार्टमेंट्स में अलग अलग था, ERP का यूज ही इसीलिए किया है कि सब डेटाबेस सेंट्रल में हो, सेंट्रलाइज्ड हो, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे का डेटा
देख सकते हैं अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आता है, सो दैट टाइम दे कैन सी द डेटा ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. Okay, so that's why this has been provided. Now see here, पहले जब हमने पिक्चर देखा था उसमें क्या था, सेंट्रल डेटाबेस था क्या? नहीं, तब सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपने डिपार्टमेंट का. यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंट्रल डेटाबेस लगा दिया. ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस इट इज अ वर्क ऑफ ईआरपी, यानी यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस लगा दिया. अब सारे डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन प्लानिंग के पास फाइनेंस का भी डेटा होगा, अगर देखना रहेगा तो वो उसका भी डेटा देख सकता है फाइनेंस वाला. फाइनेंस वाले को एचआर, सेल्स, किसी का भी डेटाबेस देखना है, किसी का भी डेटा देखना है तो फाइनेंस वाला उसका डेटा देख सकता है. इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट किसी किसी का भी डेटा देख सकता है यूजिंग दिस सेंट्रल डेटाबेस. Thus, employees in any department get the required information related to the activities of the respective department. So, by using the centralized data, employees in any department, कौन से भी department में employee रहेगा, उसको जो भी information required है वो देख सकता है of respective department. किसी भी department का अगर उसको data देखना है जब भी उसको जरूरत पड़ेगा, so that time that department can see the information of the that is the work of what? That is the work of ERP. Understood what is the work of ERP? ERP का जरूरत क्यों पड़ा? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इतना अमाउंट ऑफ डेटा रहता है कि वो सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना देखते हैं और सबसे जो ऊपर पर्सन है उनके पास पहले ये सब डिपार्टमेंट का डेटा होता था. लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया और उसको अगर दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा देखना है तो उसको क्या करना पड़ता था, एक तो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जाके उसको मीन्स जो सबसे टॉप पर्सन रहेगा उसके पास जाके उसको डेटा लेना पड़ता था. तो इससे अच्छा कि अगर ईआरपी का यूज करके हम लोगों ने सेंट्रलाइज डेटा कर दिया तो किसी के पास जाने का जरूरत है क्या किसी का डेटा लेने के लिए? नो नीड. So by sitting in the one place, that person can view the data of the other department as well. That's why the need of ERP has come into systems. इसीलिए ERP का use हुआ. ERP, these are the software packages which has been provided by that software packages can be of SAP, that can be of Oracle, any they are controlling the databases, means they are creating the central databases as per the requirement. उन लोग क्या करेंगे, इस तरह से database बनाएंगे जो वो organization को needed है. जैसे कि अगर organization ने कहा कि मुझे production planning का database बना के दो तो वो मॉडल बना के देंगे. देन फिर फाइनेंस का चाहिए तो फाइनेंस का भी बना के देंगे, मार्केटिंग का भी बना के देंगे. जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा उन सब का डेटा या फिर जो भी मॉड्यूल चाहिए इनके लिए वो सब बना के देंगे और उनका सबका डेटा सेंट्रल डेटाबेस में रखेंगे. सो दिस इज द वर्क ऑफ ERP, why it is needed. So here today we will stop here only. Today we have seen what is ERP, what is what is enterprise, what is resource, what is planning, and what are the concepts why we want ERP, that we have seen. So this is all for today. Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe, and happy learning.